Hello, everyone, and welcome to the International Fab Talks. We are happy to connect with everyone across the world. It could be you, it could be anybody else. We really love connecting with all people from all groups, from all professionals and all age groups that I meant to say. Why did I say all age groups? Because today we have a very young individual who's joining us all the way from Delhi. He's a young personality who is focused on building a beautiful future for himself and for others as well. Join me, friends, to invite and celebrate the life of a youngster. He is all of 22 years old. Join me to welcome Rakib Chaudhary. He's here with us to share his expertise with regard to how you could also take your life journey ahead. Because we forget in the speed of life or with the ups and downs in life, we forget to focus on building a beautiful profession or a career for ourselves or selecting the best profession. So चलिए हमारे साथ आज हमारे स्पेशल सेलिब्रिटी और गेस्ट के साथ बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और सीखेंगे भी कुछ उनसे. लेट्स वेलकम राकिब चौधरी. हेलो सर, हेलो मैम. नमस्ते एंड वेलकम. हेलो मैम. थैंक यू वेरी मच राकिब सर, आप हमारे लिए वक्त निकाले हैं और आप यहाँ पर आके आपका जो विचार है, सोच विचार है और जो आपका काम है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी भी देंगे. हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा उनको भला भी होगा इससे और आपसे कनेक्ट भी हो सकते हैं अगर उनको कुछ चाहिए, कुछ हेल्प आपसे, तो दैट्स रियली नाइस. थैंक यू सो मच मैम. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुलाया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, इतना आपने मुझे काबिल समझा कि मैं आ सकूं, उसके लिए बहुत थैंक यू आपका. तो स्टार्ट करें मैम? यस सर. आई विल स्टार्ट इट इन अ मिनट सर. आई जस्ट शेयर योर प्रोफाइल. आपका प्रोफाइल शेयर करूंगी मैं सभी के साथ, उसके बाद स्टार्ट. ओके मैम. Thank you, Rakib sir. Dear friends, I'd like to share the profile of our celebrity and guest, who's all of 22 years. Let me just share his profile in brief. Rakib Chaudhary is a 22-year-old digital marketer from Delhi with a degree in BBA, that is Bachelor's in Business Administration from Jamia Millia Islamia. And he's got several certifications from Google, Digital Garage, and Skills Shop. He founded two companies, dear friends, Brandling and the Brandling Institute. At Brandling, they offer customized marketing solutions to startups, where at the Brandling Institute, they share digital marketing knowledge through courses and mentoring programs. And it is their mission to help and empower the startups with tailor-made strategies for success. That's really nice and unique, because helping others to grow in their business is a unique one, and especially focusing on startups. That's good, because all of them want experienced or the already ones who are professionals into the field. But here, standing with the startups, being with them, encouraging them to go ahead in their life makes a difference. So let's join together and have a wonderful time with our celebrity and guest is Mr. Rakib Chaudhary. Sir, hello sir. हमने आपके बारे में थोड़ा बहुत शेयर किया था. Thank you for kind words, ma'am. Thank you, Rakib. That's really nice. आप दिल से बहुत अच्छे हैं और you're a perfect gentleman. That's really nice. You're very Thank you so much. Thank you so much. जी सर. सर, आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपके बारे में थोड़ा कुछ मैंने शेयर किया, हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा बहुत शेयर किया. आप क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में? कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने आप को? एक्चुअली मैम सिंपल सा है कि अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि मैंने हमारी जो जर्नी रही है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल और एज अ को फाउंडर और बिजनेस ओनर, दैट्स मतलब वो बहुत ज्यादा यूनिक रही है. उसमें काफी ज्यादा चैलेंजेस हमने फेस किए हैं. लाइक काफी यंग एज में स्टार्ट करने में, काफी ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ज्यादा इश्यूज आए थे स्टार्टिंग में. जैसे कि you are very young age, how you can do it or by your own. तो ये सारे इश्यूज आए थे जिन चीजों को हमने रिजॉल्व किया. लाइक 17 की एज में मैंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया था एज अ डिजिटल मार्केटर, जिस चीज में हमने वहां से फिर मैंने अराउंड 2022 तक मैंने जॉब करी है, जिसमें मैंने काफी कंपनीज के साथ काम किया. गैलेक्सी वेबटेक और आपका KMF इंटरनेशनल कंपनीज है, उनके साथ काम किया. अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो मैंने नो ब्रोकर्स के साथ काम किया है, गोदरेज, इन सब के प्रोजेक्ट्स हैंडल करे हैं, तो वहां से काफी ज्यादा नॉलेज गेन की है. देन फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी विद यूनिकनेस, जहां से मुझे पता चला था कि काफी स्टार्टअप्स हैं
जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल्स हैं रीच करने के लिए मार्केट में, बट वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है। जो रिसोर्सेज के बारे में हमने थोड़ा उनसे जब डिस्कस किया तो हमें पता चला सबसे फर्स्ट जो इशू आता है वो फाइनेंशियल क्रंच का होता है द स्टार्टअप, कि उनके पास उतना बजट नहीं होता कि वो मार्केटिंग पे स्पेंड कर सके या उतना अच्छा डिलीवर कर सके उसमें, क्योंकि पूरी उनको टीम हायर करनी पड़ती है। अगर मैं बात मार्केटिंग का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है और सबसे स्ट्रांग पिलर होता है किसी भी कंपनी का मार्केटिंग। तो उस चीज के लिए फिर हमने वो रिजॉल्व करने के लिए कि हमारा जो मेन फोकस रहा है एज अ ब्रांडिंग, कि वो यही है कि हम उनको पूरी एक टीम रेडी करके देते हैं, जिसमें हम उनको हर सर्विसेज पर फोकस करके हर चैनल को उनका ऑप्टिमाइज करके उनको एक बेटर लीड फनल रेडी करके दे, जहां से उनका बिजनेस टेक ऑफ कर सके। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर किया, बड़े स्पष्ट रूप से आपने शेयर किया था। थैंक यू वेरी मच, दैट्स रियली नाइस सर। ओके। जी भाई साहब, आप किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं जब आप छोटे थे, या आपके साथ जो अप्स एंड डाउन्स है जिंदगी में, सभी के साथ होती है वो, तो आप किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करें, किस तरह की समस्या आपके सामने आके खड़े हुए? एक्चुअली जब मैंने अपनी हायर क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी, लाइक हमारा जो 12th कंप्लीट करी थी मैंने, तो मेरे सामने बहुत ज्यादा इश्यूज थे, क्योंकि एज अ मुझे पढ़ाई में कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट था नहीं शुरू से ही। मतलब मैं बुकिश नॉलेज में इतना बिलीव नहीं करता था जितना मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज में फोकस था मेरा। तो मैं जब घर वालों से मैंने डिस्कस किया कि मुझे आगे इस चीज में कंटिन्यू नहीं करना, तो उनके बहुत ज्यादा सवाल थे जिस चीज को मैं जवाब थे ही नहीं मेरे पास एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है, इस सब चीजों में कैसे अपना करियर बिल्ड करूंगा। इतना पता था कि बस आगे इससे आगे मैं बुकिश नॉलेज में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि मैं क्या चीज कर सकता हूँ, किस चीज में मैं बेटर हूँ। देन फिर मैंने देखते देखते फिर मुझे उस टाइम पे पता चला था कि डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड है जो कि इस टाइम पे अभी बूम कर रही है, और उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आगे जाने की। तो मैंने उस फील्ड के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर किया, वीडियोस वगैरह देखी यूट्यूब पे। देन फिर मुझे आइडिया लगा कि हाँ इस फील्ड ये फील्ड इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं अपना करियर बिल्ड कर सकता हूँ। देन फिर मैंने उस फील्ड को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, कोर्सेज वगैरह के उनके कोर्सेज वगैरह देखे। देन कोर्सेज वगैरह देख के मैंने उस चीज को नॉलेज गेन की। देन नॉलेज के बाद मेरा जब फर्स्ट सर्टिफिकेशन आया तो मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा। मेरी इंटर्नशिप थी टेक्सटाइल इंडिया में, जो कि नोएडा बेस्ड कंपनी है। नोएडा में वो कंपनी है, तो वहाँ पे मैंने अपना करियर की स्टार्टिंग की थी। वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट करी। फिर ऐसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ता रहा। एक पॉइंट आया जब मैं अपने करियर में इतना वो था कि भाई एक सस्टेन कर गया था अपने करियर में कि हाँ ठीक है, इसके आगे मुझे अब नए लेवल पे जाना है। तो नए लेवल के बारे में जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि क्या हम यूनिक कर सकते हैं। तो मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिखी जो स्टार्टअप्स के साथ थी या कंपनीज के साथ थी, कि जो मैंने देखा है इन टर्म्स ऑफ कि मैंने काफी ज्यादा एजेंसीज के साथ काम किया, मार्केटिंग एजेंसीज के साथ काम किया। तो मैंने उनके अंदर ये चीज देखी है कि वो फंडिंग्स तो ले लेती है, उनकी जो सर्विसेज के चार्जेस होते हैं वो ले लेते हैं, बट जो सर्विस वो उनको चाहिए होती है वो डिलीवर नहीं कर पाते। लाइक वो उनसे अपने काम के पैसे ले लेते हैं बट वो रिजल्ट बेस पे शो नहीं कर पाते, जो कि कंपनीज के लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई आपने तो पैसे ले लिए, आपने तो अपनी सर्विस दिखा दी कि भाई मैंने तो काम किया था, बट उनसे उनको कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ। तो उनके लिए तो वेस्ट ऑफ मनी रहा। उनके लिए तो वो वेस्ट ऑफ मनी था, जिस चीज के लिए वो फिर आगे मार्केटिंग कंपनीज पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो हमने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की तो हमने ये कंडीशन रखी कि आप हमें स्टार्टिंग करने के लिए सिर्फ 30% दीजिए अमाउंट का। हम 30% में स्टार्ट करते हैं और जो 70% होगा वो बेस्ड ऑन रिजल्ट होगा। इन केस अगर हम अपने रिजल्ट लाने में असफल रहते हैं, या हम उस चीज को जो हमने आपको डिमांड की थी या फिर जो हमने आपको कमिटमेंट की थी, अगर हम वो फुलफिल नहीं कर पाते, तो हम आपको टोटली कैंसिल कर देंगे इस एग्रीमेंट का, और कोई भी चार्जेस हम आपसे लेंगे नहीं। तो वो सिंपल होता है, जिससे उनका भी ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई अगर उन्होंने रिजल्ट दिए तो हमें पे करने की जरूरत है, अगर रिजल्ट नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने चार्जेस नहीं लेंगे हमसे।
वो चीज ये चीज लाके हमने मार्केट में थोड़ा गैप कम करा। ये चीज से एक उनको भी ट्रस्ट हुआ, कंपनीज को भी, स्टार्टअप्स को भी, कि हाँ भाई एक अच्छी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। और हमें भी ट्रस्ट हुआ कि भाई हाँ, वो जो हमने 30% लिया था उससे हमें भी ट्रस्ट हुआ कि भाई कि ये कंपनी पे करने के लिए रेडी है अगर हमें इसे रिजल्ट देता है। क्योंकि काफी ज्यादा कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनको आप रिजल्ट भी दे देंगे, देन वो तब भी पेमेंट डिले करती हैं, बहुत ज्यादा डिले करती हैं। जिस चीज के लिए हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, कि उनको भी ट्रस्ट रहे हम पे और हमें भी उन पे ट्रस्ट रहे। तो इस तरीके से हमने अपना बिजनेस का स्टार्टिंग की थी। और अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहूँ कि भाई पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज आए थे, तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं। जी सर, जी सर। हम ये पूछना चाहेंगे अभी, हम्म। किस तरह के स्टार्टअप्स आप से, कौन से किस तरह के स्टार्टअप्स आपके साथ जुड़ सकते हैं? क्या है, कौन आ सकते हैं आपके पास आपका सर्विसेज लेने के लिए? एक थोड़ा सा मैम क्लैरिटी उस पे मिल जाएगी। ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई आ सकता है, मतलब हम स्टार्ट सबके लिए ही काम करते हैं। हम हर इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, बस डिफरेंट ये होता है कि हम सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना के काम करते हैं। उनसे हमारा डिस्कशन होता है पहले। हम उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई आपके गोल्स क्या हैं, आपको क्या अचीवमेंट चाहिए और किस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बिहाफ पे हम एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करके देते हैं। उस स्ट्रेटेजी के उस पर हम पूरे उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ये कस्टम स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसको हम लेते हैं, 2 से 3 डेज लेते हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, पूरा एनालाइज करने के बाद तब हम उनको कमिटमेंट देते हैं और फिर हम उस कमिटमेंट को डिलीवर करने के लिए लग जाते हैं। जी जी जी। आप एक थोड़े लोगों को ये भी नहीं मालूम कि भाई स्टार्टअप क्या होता है, थोड़े दर्शकों को जो है क्लैरिटी भी नहीं कि भाई है स्टार्टअप क्या। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में क्लैरिटी दे सकते हैं भाई साहब? हाँ, स्टार्टअप्स मैम, बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं, कोई भी कंपनी जो जिसने अभी तक 5 साल कंप्लीट नहीं करे, 5 साल नहीं कंप्लीट किए, वो एक स्टार्टअप काउंट होता है। अब वो कोई भी इंडस्ट्री की हो सकती है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, वो आपकी सोल प्रोप्राइटर हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, वो एनीथिंग हो सकती है। कोई भी कंपनी चलती है, बट अगर वो 5 साल से नीचे है, वो एज अ स्टार्टअप काउंट होता है। जी जी जी, दैट्स वेरी नाइस, यू एक्सप्लेन दैट वेरी नाइसली। अभी किस किस तरह के स्टार्टअप्स आप के साथ संपर्क करके उनका जो बिजनेस आगे ले जा सकते हैं? अगर वो आइडिया दिए, हिंट दिए, तो जो दर्शक देखते हैं ना, तो हाँ, ये स्टार्टअप मेरा है, मैं इनके साथ मैं कोलैबोरेशन रख सकता हूँ बोल के, ऐसा। ऐसा एक्चुअली हम आइडियाज पे फोकस करते हैं कि आपका आइडियाज कितने यूनिक है, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी देखते हैं कि भाई हाँ, अगर आप उस कंपनी से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ला रहे हैं, लाइक आपकी जो भी चीज है उससे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ला रहे हैं, या आपकी जो सर्विसेज है वो यूनिकनेस के साथ आ रही है, या आप वो डिलीवर करने की पोटेंशियल रख सकते हैं कि जो मार्केट में कोई नहीं रखता, तो फिर हम आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। कि उसको कैसे मार्केट करना है, उस तरीके से फिर हम उस चीज पे काम करते हैं। तो ये सब और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जैसा के साथ कनेक्टेड है सब? हाँ, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के ही अंडर आता है। लाइक हम काफी, जैसे आपका एसईओ हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और सर्च इंजन मार्केटिंग, जो ये दो चीजें होती हैं सर्च इंजन पे ही हम परफॉर्म करते हैं। आपके बिजनेस के बारे में जो भी रिलेटेड सर्च क्वेरीज हो रही हैं, जो भी आपके बिजनेस, उस पर आपको टॉप पे लाना, जहां से आपकी मेजरली लीड जनरेशन की सोर्स बन सके, या फिर आपके बिजनेस के बारे में एक हायर रीच या हाईएस्ट सेल्स फनल बन सके, उस चीज का मेजरली वो सोर्स होता जी जी सर, दैट्स रियली वेरी नाइस। आपको इस फील्ड में आने का प्रोत्साहन कौन करा? आई मीन, हु हैज एनकरेज्ड यू टू है। पुट इट द एक्चुअली राइट मैम, वे, हु एनकरेज्ड? इस चीज में ज्यादा मुझे जो फोकस आया था, वो किसी का वो नहीं था कि मुझे इस फील्ड में घुसना है। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे अर्न करना है एक स्टेबल इनकम, ताकि मैं अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकूं। तो इस चीज में मुझे एज अ करियर वाइज जो करा है फोकस, वो 2 ही पर्सन थे मेरी लाइफ में, एक मेरी मम्मी और दूसरी मेरी गर्लफ्रेंड, जिसने मुझे इस चीज में इतना फोकस किया, मतलब इंकरेज किया, मेरे ऊपर इतना बिलीव रखा कि मैं हाँ ये चीजें कर सकता हूँ। अभी भी मुझे बिलीव नहीं होता कि मैंने ये सब चीजें अचीव कर ली हैं, क्योंकि विदाउट देम मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्योंकि वो कॉन्फिडेंट और वो चीज जो होती है, जो एक ट्रस्ट आता है आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर आपके नोन्स वाले ट्रस्ट करते हैं, देन फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग
बिलीव हो जाता है अपने आप पे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब मेरे साथ वाले मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो अब मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता ना करके, अब मुझे करना ही है। तो वो वहां से मुझे ये सारी पोटेंशियल और ये एक तरीके से एक कॉन्फिडेंट या मोटिवेशन आती है, जिससे मैं ये सारी चीजें करता हूँ और करी है मैंने अभी तक। जी जी, दैट्स रियली नाइस भाई साहब। अभी माँ के बारे में कुछ बता सकते हैं? आप क्या माँ को सताते थे जब छोटे थे? किस किस तरह के बच्चे थे आप? नटखट थे घर छोटे है जब, या वेरी स्टूडियस? मैं छोटा था तो मैं तो बहुत ज्यादा ही नटखट था। आप ये समझिए कि अभी मेरे अंदर वो मेच्योरिटी आई है जब से मैंने ऐसा 17 या 18 की एज में आया था। उससे पहले तो मैं ऐसा काफी ज्यादा वो चीज थी कि नटखट था, एक ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन था मैं, जिसमें वो चीजें थी कि हाँ मेरे आगे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीजें थी ऐसा बचपन से ही, क्योंकि वो नहीं था, या फिर आप ये कह लीजिए एक मोरल सपोर्ट नहीं था। फिर मम्मी ने काफी ज्यादा मेरे को तब भी सपोर्ट किया था, और अब भी उन्होंने काफी बेटर बनाया मुझे उस चीज में। जी जी जी। आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद है बचपन में ऐसा हुआ था, आपने ऐसा शरारत किया, ऐसा कुछ याद है आपको? यस मैम, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एक तो है कि मैं और मम्मी, मतलब हम दोनों ही थे, और हम साथ में ही थे नानी के घर पे। तो हम दोनों वो थे, मुझे खेल रहे थे हम सारी चीजें, बट मैंने ग्लास तोड़ दिया था। अब वो ग्लास टूटा तो फिर मम्मी ने डांट लगा दी थी, और वो डांट लगा दी थी तो मैं घर से चला गया था। नानी के घर से चला गया था मामू के घर पे, और कि मैंने मामू से बोल दिया था कि आप बताना मत कि मैं यहाँ आया हूँ। तो सब मुझे ढूंढ रहे थे, रात तक भी किसी को नहीं पता लगा था, सब परेशान थे। फिर एंड में आके मामू ने बता दिया था कि हाँ मेरे ही घर पे है। तो फिर सबको रिलीफ हुआ था। बट फिर जब मैं वहां पे गया था घर पे वापस, तो मम्मी ने फिर डांट लगाई। अच्छा जी, ऐसा भी किया था आपने? अच्छा। हाँ, ऐसा भी हुआ था। मतलब जी बहुत छोटी बात है, मतलब जब मैं 7 या 8 साल के हूँ। जी जी जी, दैट्स वेरी नाइस, वेरी क्यूट टू शेयर दैट। सर, अभी आपके जो ये प्रोफेशनल स्पेस है, क्या दोस्तों को भी मिलाया? सब लोग मिलकर कर रहे हैं या अकेले कर रहे हैं आप, या कुछ टीम एक्चुअली है आपके साथ? जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी ना, तो मेरे एक आप ये कह सकते हैं खाला के लड़के, आपको मैं खाला बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता हो। मम्मी की बहन की मम्मी की बहन जो होती है उनके बेटे। तो जो मेरे खाला के लड़के थे, हमने उनके साथ कंपनी स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में। बट उन्हें वो मतलब एक तरीके से कह लीजिए सपोर्ट या फिर वो नहीं, ट्रस्ट नहीं बना था उनका कि भाई हाँ हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। उन्हें शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए थे, जो कि एज अ कंपनी लाने में पॉसिबल नहीं थे। तो वो उन्होंने बैकआउट कर लिया था। तो जब से मैं इस कंपनी को अकेला ही रन कर रहा हूँ। वेरी वो गुड। शुरू की बात थी, मतलब वो 2 महीने टिके थे। 2 महीने तक हमने साथ काम किया था, फिर बाद उन्होंने बैकआउट कर लिया था। तो जो उनका कट था, मैंने वो कट उनको देके वापस पूरी कंपनी की स्टेक अपने पास रख लिए थे। ओह ग्रेट, दैट्स रियली नाइस, दैट्स गुड। एंड सर, अभी ये पूछना है कि आप स्पोर्ट्स और गेम्स में भी हिस्सा लेते हैं? हाँ नहीं, मतलब स्पोर्ट्स और गेम्स में तो नहीं, बट जिम मेरा प्रेफर रहता है। मैं प्रेफर करता हूँ बहुत ज्यादा करने के लिए। एक्सरसाइज मैं डेली करता हूँ। जी जी जी, दैट्स रियली नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। आपका जो आगे आने वाले 10 सालों में हम्म। आप किस तरह के सोच रखते हैं कि भाई लोग कैसा रहना है? आज कैसे लोग कैसे हैं, आज लोग कैसे बर्ताव करते हैं, 10 साल के बाद कैसे करना चाहिए? क्योंकि लोग थोड़ा सा क्या है, सेल्फिश, खुदगर्ज, हम्म। खुदगर्जी हम्म। ज्यादा दिख रही है आजकल। पहले भी था और आजकल बहुत दिख रही है। वो खुद का भला चाहते हैं, दूसरों का ऊपर आना उतना उनके मन में नहीं। पहले मैं आऊं, इट इज मी फर्स्ट। तो आपका मन में क्या है? क्या ये बदल सकता है आगे आने 10 साल में? बदल सकती है? वो तो डिपेंड करता है मैम कि लोग क्या सोच रहे हैं। और जैसे जैसे आगे टाइम जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बदलेगा, और वर्ष ही होगा। क्योंकि जितनी चीजें चल रही हैं वो वर्ष ही होती जा रही हैं। मतलब पहले के टाइम में आप देखेंगे तो चीजें कुछ और थी, और आपके टाइम में कुछ और है। और आने वाला टाइम तो और इससे बेकार ही दिखता है। जैसे लोग कहते हैं ना कलयुग आने वाला है, तो वही चीजें मुझे लगता है। बट मेरे अगर मैं अपनी थिंकिंग समझू तो सब अपने अपने एक तरीके से नसीब का लेकर आए। मतलब जो आपको गॉड ने लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
आप दूसरे से जलेंगे तो वो सिर्फ आपके लिए ही बैड इम्पैक्ट डालेगा, आपकी ही लाइफ को इफेक्ट करेगा। सामने वाले बंदे को उसका चीज का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। आप उस चीज को लेके कि भाई वो चीजें मेरे पास क्यों नहीं है, वो चीजें उसके पास क्यों नहीं है, ये चीज आप अपनी चीजों पे खराब कर रहे हैं। टाइम सबका आता है, टाइम सबका आता है, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन होता है। जिंदगी सबको ही दूसरों की ही अच्छी लगती है। अगर मैं देखूंगा तो आपकी अच्छी लगेगी, आप देखेंगे तो मुझे आपको मेरी लगेगी कि भाई वाह क्या जिंदगी है। बट असल में जो जी रहा होता है उसे पता होता है कि उसकी जिंदगी क्या है। जी जी, ये तो सच बात है, ये तो यस सच। मैम। यस भाई साहब, अभी आप दिल्ली से बात कर रहे हैं आप? यस मैम। अच्छी बात है। भाई साहब ये बताइए कि भाई सबसे अच्छी बात आपको दिल्ली को लेकर, दिल्ली मन में रख के, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिल्ली। मैम यहाँ का खाना, वाह। दिल्ली का खाना आप कहीं पे भी, मतलब पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में लगा लीजिए, आपको वो खाना नहीं मिल सकता जो दिल्ली का खाना है। दिल्ली का जो स्ट्रीट फूड है बेस्ट। ओह ग्रेट, दैट्स नाइस। एक दो चार उनके नाम बता दीजिए, 2 or 3 नेम्स ऑफ द फूड। क्या क्या मिलता है वहां पर? मैम बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, बिरयानी हो गया, फिर छोले कुलचे हो गया, छोले भटूरे हो गया। छोले भटूरे तो विराट कोहली सर के भी फेमस हैं, वो भी दिल्ली से ही थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छे वो होते हैं। मतलब बहुत सारे स्ट्रीट फूड है, मैं नाम गिनाने पाऊंगा तो बहुत ज्यादा, मतलब ये इंटरव्यू कम कम पड़ जाएगा। मतलब इतनी सारी चीजें हैं दिल्ली में खाने के लिए। ओह गॉड, दैट्स रियली नाइस। अगर आपको मौका दिया गया किसी दूसरे शहर में जाके रहना, आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा, तो दिल्ली छोड़ के कहीं और जाना चाहेंगे आप? मैम देखिए, अगर बिजनेस के लिए जाना पड़ा तो फिर जाना पड़ेगा, बट अगर आप दिल से पूछेंगे भाई हाँ कि जाना है या नहीं जाना, तो उस चीज में मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं बाहर जाऊं। दिल से तो फैमिली के साथ ही रहना पसंद करते हैं सब, चाहे आप कितना भी कमा लीजिए। जब तक आपके पास फैमिली नहीं है ना, तो आपकी मनी आप क्या ही करेंगे उस पैसों का, जब तक आपके पास स्पेंड करने के लिए लोग नहीं है। आपको अचीवमेंट भी तब अचीवमेंट लगती है जब आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए लोग होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर आपको अचीवमेंट भी अचीवमेंट लगती नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। जी जी सर। आपको राकिब चौधरी में क्या अच्छा लगता? मैम मेरे अंदर तो मुझे ऐसा कुछ खास अच्छा लगता नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर जो चीज है वो यही है कि मैं हार नहीं मानता। अगर मैंने एक चीज कंटिन्यू कर ली है तो मैं उसके एंड पे ही जाऊंगा, चाहे कितने बीच में कितने भी फेलियर्स आ जाए, या मैं बिल्कुल ही जीरो पे आ जाऊं। मतलब अगर मैं ये कंपनी स्टार्ट करता हूँ और ये बिल्कुल फेल हो जाती है, तो मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा, ताकि फिर मुझे पता होगा कि मैंने पहले क्या गलती की थी जो मुझे इस बार नहीं करनी। फिर मैं उस चीज को कंटिन्यू करूंगा, फिर फेल होऊंगा, फिर उस चीज को और इम्प्रोवाइज करूंगा, बट क्लोज नहीं करूंगा, गिव अप नहीं करता। अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं कंप्लीट करके ही मानूंगा उस चीज को। दैट्स नाइस, वंडरफुल, दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है, ये सभी लोग जानना चाहिए कि भाई अगर चल भी नहीं रही है तो कोशिश करके उसको आगे ले जाना, हिम्मत नहीं हारना है, रीस्टार्ट करना है। यस। हाँ ऐसा होता है। देखिए मैम, जैसे आपने कोई भी कंपनी स्टार्ट की, आप स्टार्टअप भी स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा केसेस में होता है कि आपको लगता है उसमें पोटेंशियल है, बट वो पोटेंशियल अचीव करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट बहुत बंदों के पास वो फाइनेंशियल क्रंच होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इन सब चीजों को, कि भाई हाँ हम उस चीज को कैसे कर पाएंगे या कैसे करेंगे आगे। तो हर बिजनेस ओनर के दिमाग में डाउट होता ही है। हर बिजनेस ओनर के दिमाग में एक तारीख को यही चलता है कि इस महीने के एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे, वो रिजल्ट कैसे देंगे। तो वो चीजें हर बिजनेस ओनर के दिमाग में होती है। आप किसी बड़ी कंपनी के ओनर से भी बात करेंगे तो उनके भी यही सेम डाउट होता है, और एज अ स्टार्टअप आपके, तो ये सेम सिचुएशन हर बिजनेस के साथ होती है कि भाई आपके पास लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ रिसोर्सेज होंगे ही, बट आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि टाइम बदलता ही है धीरे धीरे करके। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत अच्छी मैसेज आपने दिया। कंटिन्यू द जर्नी, हिम्मत नहीं हारना है, तो धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। हाँ क्योंकि मैम जर्नी तो यही है कि जर्नी का ही मजा है। डेस्टिनेशन पे पहुंच के तो आप एक न्यू गोल सेटअप कर लेंगे अपने लिए। जब वाह। तक आपने जर्नी नहीं एंजॉय करी तब तक आपने क्या ही करा। मतलब आप ये देखिए ना कि आपने पिछले साल कोई गोल सेट किए होंगे, आपने वो अचीव किए, आपने तभी कहा, आपने तब भी ये नहीं सेटिस्फाई होंगे कि भाई ये मैंने अचीव कर लिया। आप तभी एक नया गोल सेटअप कर लेंगे अपने लिए कि भाई अब मुझे ये अचीव करना है। सैलरी वाइज भी क्या भाई, अगर मेरी इस मंथ में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरा गोल है कि मैं नेक्स्ट मंथ 2 लाख रुपए कमाऊं। अगर आप 2 लाख रुपए कमाने पे आ गए तो 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, तो वो एक बंदे के इंसान के अंदर से वो
कभी सेटिस्फेक्शन आती नहीं है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि हाँ भाई मेरे पास जितना है वो इनफ है। आप देखेंगे वो आपके अंदर और करने की भूख होगी ही कि भाई मुझे और अचीव करना है, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। तो इस चीज को वो पार्ट एंजॉय करना है आपको जिंदगी में। अगर आपने वो एंजॉय नहीं करा ना, तो एंड ऑफ द डे आप यही सोचेंगे भाई कि मेरे पास ये पैसा है, अब मैं इसका क्या करूं। क्योंकि जो टाइम था, जो मेरे पास जिस टाइम में मुझे एंजॉय करना था, या फिर जिस टाइम में मुझे पैसे से कुछ अचीव करना था, या अपने शौक या फिर जिंदगी जीनी थी, तो फिर वो तो मैंने किया ही नहीं। उस टाइम तो सिर्फ मैं पैसे कमाने में ही लगा रहा था। बट अब मेरे पास वो पैसा है, तो मैं क्या करूंगा इस पैसे से। जी सर, दैट्स रियली वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपको मूवीज पसंद है भाई साहब? अगर हाँ तो कौन सी मूवी पसंद है आपको? एक्चुअली मैं मूवीज वगैरह नहीं देखता। मैं राइटिंग में बिलीव करता हूँ। अभी मैंने शुरू में स्टार्ट किया है कि मैं बुक्स वगैरह राइट करना स्टार्ट किया है। वाह, दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस, बहुत अच्छी बात है। क्या आप दिल्ली छोड़ के किसी कोई दूसरा शहर में कभी गए हैं छुट्टियों पर? यस मैम, मैं बहुत ज्यादा ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए मैंने काफी चीजें एक्सप्लोर किया है। लाइक गोवा एक्सप्लोर किया है मैंने। देहरादून हो गया, हिमाचल हो गया, आपका कसौल हो गया। तो ये सारी चीज जगह मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, अभी आपकी तरफ बहुत सारे नौजवान है इंडिया में, एवरीवेयर, ऑल द स्टेट्स, द यूथ। तो उनको किस तरह आप प्रभावित कर सकते हैं अपने बातों से, या क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? क्योंकि बहुत सारे लोग, जो बच्चे हैं, लड़का लड़की आपकी उम्र के जो है, टाइम वेस्ट करते हैं। ये कहते हैं कि मैं गम में डूबा हूँ, मुझे बचपन में, मेरा बचपन सही नहीं था, बहुत दुख दर्द के साथ था, हमेशा मेरे माँ बाप लड़ते थे हमारे सामने, तो वो अब हम्म, मुझे बार बार याद आ रही है। हम्म, आगे नहीं जा पाऊंगा, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो बार बार डिप्रेशन के का मैं शिकार हूँ बोल के बोलते हैं। इससे बाहर कैसे निकले? क्या डिप्रेशन सचमुच में होती है, या एक क्या है वो, आपके नजरिए से क्या बोलना चाहेंगे इस सभी यूथ? मैम एक्चुअली अगर आप इस चीज पे मुझसे पूछेंगे, तो ये सेम सिचुएशन मैंने भी अपनी लाइफ में फेस की है। और ये सब चीजें मैंने भी झेला है, और ये सब चीजें मैंने भी बहुत ज्यादा वो किया है। आप यकीन नहीं होगा आपको कि मैंने अभी तक जो भी अचीव किया है अपनी लाइफ में, वो सब मैंने अपने उससे ही किया है। मैंने ना फैमिली पे कभी प्रेशर डाला कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट चाहिए या फंड्स चाहिए, वो मैंने कभी नहीं लिए। मैंने अपना करियर में जब मुझे सर्टिफिकेशंस वगैरह या फिर नॉलेज के लिए, तब भी मैंने कभी घर वालों से पैसे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैंने जब से मैं 17 की एज में था, तब से मैंने घर वालों से एक्सपेंस अपने, तब से मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। मैंने तब से ही लेना छोड़ रखा है। तो आप ये चीजें, मतलब चैलेंजेस सबकी जिंदगी में होते हैं। अब ये चीज मैं वो नहीं कर रहा कि भाई मैं अपना आपके ऊपर दिखा रहा हूँ। बट ये एक तरीके से आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि भाई सामने वाले बंदे ने भी कि अपनी 17 की एज से अपने सारे एक्सपेंसेस खुद मैनेज किए हैं। लाइक कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितना मोटा अमाउंट, कितना मोटा फंड चाहिए होता है, या कितना लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है कि स्टार्ट करने के लिए, वो भी मैंने खुद अरेंज किया है बाय ओन। जिस चीज में मैंने आज तक अभी तक अपनी अपने वो उसमें किसी से भी हेल्प नहीं ली। जो किया मैंने खुद किया। बट मोटिवेशन और सपोर्ट मुझे काफी ज्यादा मिला है, जो मेरे फैमिली में मदर ने और मेरी साइड में गर्लफ्रेंड ने जो मुझे सपोर्ट दिया, जिस वजह से मैंने इतनी सारी चीजें करी। बट एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट तो मुझे किसी ने नहीं दिया था, वो मैंने खुद ही किया। और ना मैंने कभी मांगा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई अगर मैं मांगता हूँ, तो मेरे पास एक तरीके से फेल होने का डर रहेगा कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं ये फंड्स कहाँ से लाके दूंगा। अभी मेरे पास कोई डर नहीं है। अगर मैं यहाँ से फेल भी होता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि भाई मेरा खुद का पैसा था, मैंने उसे वेस्ट कर दिया। वेस्ट भी नहीं करा, मतलब उसे मैंने, लॉस हो गया मेरा, तो मैं उसे बेयर कर सकता हूँ। बट अगर किसी और का होता, तो फिर उनके दिमाग में ये थिंकिंग होती कि यार मैंने पैसा पैसा दे के अपना वेस्ट किया। बट फैमिली के दिमाग में तो नहीं होती ये सब चीजें। बट फिर भी एक मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा। और डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती अगर आप अपने गोल्स पे, अगर आपको पता है आपके गोल्स क्या है, तो आपको वो मिलेगा। और सपोर्ट हमेशा आपको कोई नहीं करने वाला। गोल्स आपके हैं, तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। ये अगर आप ये चीजें रहेंगे कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या मेरे फैमिली इश्यूज हैं, या मेरी फैमिली इतना इंकरेज नहीं करती, तो वो चीजें नहीं होती। आपको खुद ही करना पड़ेगा। मेरे को भी फैमिली ने स्टार्टिंग में बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था।
जब मैं 17 की एज में अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप करने गया था, मेरी खुद की फैमिली ने मुझ पे इतना हंसे थे, वो मुझ पे कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें लगता है कि तुम इससे अपना करियर बना सकते हो? कि मतलब स्टार्टिंग जब मैंने की थी, वो इंटर्नशिप पे मुझे 3,000 रुपीज मिलते थे। 3,000 रुपीज का पर मंथ की मुझे स्टाइपेंड मिलता था, जबकि मेरे एक्सपेंसेस ही, मतलब जो ट्रैवलिंग का ही एक्सपेंस था, वही 3,500 रुपीज का था। बट फिर भी मैंने किया था, क्योंकि मुझे पता था, मुझे मेरे घर मेरे जो फैमिली में ब्रदर है, बिग ब्रदर और बिग सिस्टर है, उन सब ने मेरे को बहुत मजाक बनाया था कि भाई तुम 3,000 रुपए में इससे तो अच्छा एक तरीके से वही चीजें कर लो, कि भाई ये चीज मतलब इतनी पोटेंशियल नहीं है, इतना वो चीजों में नहीं है कि 3,000 में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बट मैंने उस चीज को एज अ मोटिवेशन ली कि भाई कोई बात नहीं, जब मैंने हिम्मत भी हारी कि मेरे घर वाले ही ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं क्या ही करूंगा। बट फिर भी मैंने, जब मेरे को गर्लफ्रेंड ने बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीजें होती हैं, और तुम उनको ये चीज अचीव करके दिखाना है कि भाई देखो, हाँ मैंने कर दिया, तुम्हारी बिना हेल्प के भी मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, और मैंने करके दिखा भी दिया। इससे पहला जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने जब मम्मी को दिखाया, तो वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। Yes, excellent, excellent, Rakib sir. That's really wonderful. अब माफी को लेके क्या कहना चाहेंगे? या हम्म। आप लोग माफी को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? किस चीज के लिए मैं? माफ करना लोगों को। अब देखो, माफी, हमारे साथ फॉरगिवनेस। थोड़े लोग अच्छे रहते हैं, थोड़े लोग बहुत बुरे तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं। तो अगर आपको कोई हर्ट कर दिए तो आप उनको माफ करते हैं, अगर कर देते हैं तो वक्त लगता है, या जल्दी माफ कर देते हैं? एक्चुअली मैम डिपेंड करता है कि पर्सन कौन है। अगर मेरी फैमिली है तो मैं आसानी से माफ कर दूंगा। बट और वो चीज है कि फैमिली वाला पार्ट, अगर सामने वाला बंदा मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, तो मैं उसे डायरेक्टली कट ऑफ कर दूंगा। मुझे पता है उस पर्सन से मुझे हर्ट हो रहा है, और मेरे को उतना पोटेंशियल, मतलब उतना उससे कोई खास लेना वो नहीं है, मतलब वो चीज नहीं है कि कनेक्शन है मेरा, तो मैं उसे तभी कट ऑफ कर लूंगा। मतलब एक कोट है जो मैंने पढ़ा है, वो कोट इस तरीके से है कुछ, कि आपको पेन तो आपको सब देंगे, पेन और हर्ट तो आपको सभी करेंगे, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन उस पेन के लिए वर्थ इट है और कौन नहीं। अगर आपको लगता है कि वो उस पेन के लिए वर्थ इट है जो आपने उनके लिए सफर किया, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो देन कट ऑफ देम। जी जी, दैट्स रियली वेरी नाइस। भाई साहब, अभी एक छोटी सी राउंड है, उसको हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं। रैपिड फायर राउंड जाने से पहले आप और कुछ बताना चाहेंगे, आपका कंपनी के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में? मैं ब्रांडिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपने यंगस्टर्स के बारे में बात की थी, तो मैं उस चीज पर आपको बताना चाहूंगा कि हमने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, तो एज एम्प्लॉयमेंट की सबको जरूरत होती है, अपनी कंपनी में सबको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। तो जब मैं एम्प्लॉयज हायर कर रहा था, तो मेरी थिंकिंग ये थी कि मुझे इंटर्न्स हायर करना है, ताकि मैं उनको सिखा के एक नए लेवल पे अचीव करवा पाऊँ, जो मेरी नॉलेज है मैं उनके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में उस चीज को यूज कर पाए, और वो पोटेंशियल गेन कर पाए जो पोटेंशियल मेरे पास है, जो मैंने अचीव किया है अपनी जिंदगी में बाय माय गाइडेंस। तो मैंने जब मैं इस चीज के लिए इंटर्न देख रहा था, तो मैंने जो दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं मार्केटिंग के लिए, जैसे टेक महिंद्रा हो गया, और भी काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता ऑफ कोर्स। तो उन चीजों के मैंने जब ये कह लीजिए जो उनसे कोर्स किए हुए बच्चे थे, उनको जब मैंने अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया, और मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया, तो उनके पास लैक ऑफ नॉलेज थी। लैक ऑफ नॉलेज इन द सेंस के जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की डिमांड है और जो नॉलेज उनके पास है, वो दोनों के बीच में एक गैप है। मार्केटिंग डिमांड कुछ और कहती मांगती है आपके पास नॉलेज, और जो आपके पास नॉलेज है वो बहुत मिनिमम है। आपको अगर मार्केट में रहना है, इस मार्केट में, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव तो है, अब तो हर इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। आपके एक सीट के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, रखते हैं कैंडिडेट। आप एक सीट पे भी 10 बंदों के ऊपर कंपटीशन है। अगर आप अपना आप को बेटर नहीं करेंगे, सुपीरियर नहीं बनाएंगे, देन फिर आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो हमने अपना कोर्स डिजाइन किया। जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया, उनसे बात बात करी, तो मुझे पता चला कि उनके पास वो नॉलेज नहीं है।
तो फिर भी मैंने उन्हें अपनी, क्योंकि मुझे कुछ तो चाहिए ही थे, तो मैंने उन्हें रखा अपनी टीम में, उनको सिखाया। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि सर, मैंने जहाँ से कोर्स किया तो मैंने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए थे अपनी नॉलेज पे, और ₹1,00,000 में मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अब जाके पता चल रहा है, क्योंकि जब तो जो उन्होंने सिखाया मुझे, मैंने मान लिया कि यही डिजिटल मार्केटिंग है, यही चीजें है। बट अब जब मैंने वो गोल अचीव किए, तो मुझे पता चल रहा है कि वो असल में वो चीज थी ही नहीं कभी। तो उनकी वो बातें सुन के मेरे दिमाग में इफेक्ट किया, मुझे वो चीजें लगी कि हाँ भाई, कि ये चीजें उनके साथ गलत हो रही हैं और आगे वाले पर्सन के साथ ऐसा ना हो। तो हमने खुद का इंस्टीट्यूट खोला, जिसमें हमने कोर्स के मॉड्यूल डिसाइड किए, 9 मॉड्यूल्स बनाए, जिसमें हम सारी पूरी डिजिटल मार्केटिंग कवर करते हैं विद द प्लेसमेंट गारंटी, कि हम उनको प्लेसमेंट भी ऑफर करते हैं। अगर आपने कोर्स अच्छे से किया, मतलब जो मॉड्यूल वाइज टेस्ट होते हैं ये सारे क्लियर करें, देन फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। देन फिर हम आपको इंटर्नशिप के लिए एक प्लेसमेंट करते हैं। देन उसके बाद आपकी जो कंपनी की प्लेसमेंट होती है, वो भी हमारे थ्रू होती है। मतलब आपका पूरा करियर सेट करने की गारंटी हम लेते हैं, अगर आप हमारे साइड से कोर्स करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेसमेंट पार्टनर्स भी हैं और हमारे पास वो नॉलेज भी है। क्योंकि अगर आप किसी मार्केटर से वो चीजें सीख रही है या अचीव कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो चीजें कितनी अचीवेबल हैं। जी जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस सर, thank you so much, sir. Thank you very much. Yes, yes, sir. Now we go ahead with the rapid fire round. Thank you for sharing about Brandling and Brandling Institute. We wish you all the very best. Sir, आपका सबसे फेवरेट महीना कौन सा है? मई। क्यों? मई एंड अक्टूबर। क्यों? क्योंकि मैम मई में मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब मैं उस मंथ में बर्थ की थी। कौन सी और डेट सर? कौन सी डेट? मई में कौन सी डेट? 23 में। 23rd में। यस। यस। एंड अक्टूबर? अक्टूबर में मैम कुछ है। ठीक है, समझ गए। वेरी गुड, दैट्स रियली नाइस टू शेयर, दैट्स ब्यूटीफुल। हफ्ते में जो 7 दिन है, आपका सबसे फेवरेट हफ्ता कौन सा है? फेवरेट डे? यस। मैम फेवरेट डे मेरा ऐसा तो कोई खास नहीं है। जिस दिन भी वो चीज होती है, मतलब एवरी डे मेरे लिए नॉर्मल रहता है, ऐसा कुछ खास है नहीं। ऑल 7 days आर इम्पोर्टेंट। हम्म। आपका फेवरेट नंबर? जैसे रैपर? पार्डन? मैम रैपर? नहीं, फेवरेट नंबर। नंबर? ओके, नंबर 2। नंबर 2। सर, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, आपका सबसे फेवरेट वाला ब्रेकफास्ट कौन सा है? हाँ मैम, फेवरेट ब्रेकफास्ट तो मेरा सिंपल है, जो भी घर पे बना। आपको पकाना भी आता है? हाँ मैम, थोड़ा बहुत। क्या पकाते हैं? मैम अंडा, एग ऑमलेट और चाय। ओह ग्रेट, दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस। आप जो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो आपको कौन सा कीड़ा पसंद नहीं है? मैम ऐसे तो मुझे कोई भी कीड़ा पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसे मतलब अजीब से ही लगता है। जी जी, सही बात है। यस, आई अंडरस्टैंड दैट। आप टी या कॉफी पीते हैं? मैम टी, हमेशा। ओके, दैट्स रियली नाइस। सो द एनर्जी बूस्टर इज टी। सर, क्या आप ऐसी चीज पर पैसे खर्च कर दिए और फिर ऐसे लगा रहे, भाई मैंने क्यों इस पर खर्च किया पैसे? क्यों? हमारे साथ ऐसे नहीं होता है, कुछ खरीदते हैं, फिर घर आने के बाद में ऐसे लगता है ऐसे क्यों खरीद लिया मैंने। तो ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, मैं जब भी कुछ खरीदता हूँ तो मैं सोच के खरीदता हूँ, और मैं अपने लिए, और मैं जब एक बार खरीद लेता हूँ तो फिर मैं रिग्रेट नहीं करता। जी जी। अब देखिए भाई साहब, ये जमाना ऐसा है, टेक्सटिंग का भी है और कॉलिंग का भी है। हम्म। पहले पहले सिर्फ कॉलिंग था, कॉल्स था अर्लियर। नाउ इट इज द ऑप्शन ऑफ टेक्सटिंग एंड कॉलिंग। तो आपको कंफर्ट कहाँ पर मिलती है, टेक्सटिंग में या कॉलिंग में? सर, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो कॉलिंग, और अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो टेक्सटिंग। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि ना मुझे ना, अगर अभी किसी से बात करना भी है, अभी बिजनेस कर, तो आई फील टेक्सटिंग इज इजियर देन कॉलिंग। क्योंकि कभी उनका कॉल मैं नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू में रहूंगी, मैं कुछ काम में मसरूफ रहूंगी। तो आई फील वो टेक्स्ट है, तो आई कैन कनेक्ट बैक विद देम। तो यस वैसा। मैम, एक्चुअली वो डिपेंड करता है। अगर वो जी पर्सनल लाइफ है
देन फिर वो टेक्सटिंग में ठीक है, बट अगर मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है देन फिर कॉलिंग। जी जी जी, आई अंडरस्टैंड दैट्स। कॉलिंग में भी अच्छा क्लैरिटी भी मिल जाती है, जो भी है बातें करना है। इमोशंस वगैरह सामने आ जाते हैं, जी 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 जो चैटिंग में नहीं दिख सकता आपको। जी जी। भाई साहब, आपका सबसे फेवरेट वाली म्यूजिक? मैम हिप हॉप। हिप हॉप। एंड फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी जब जब वी मेट। वाओ, वंडरफुल। एंड योर फेवरेट कलर? फेवरेट कलर ब्लैक। यस। एंड योर फेवरेट टीचर? टीचर मैम पवित्रा मैम। क्या पढ़ाती थी वो? मैम वो हमें साइंस पढ़ाती थी और मेरी फेवरेट टीचर है। जी जी जी। आपका फेवरेट स्नैक्स, समोसा, कचौड़ी क्या है? मैम फेवरेट स्नैक मेरा मोमोज। हाँ जी, मोमोज। व्हाट्स दैट? मोमोज। मोमोज, ओके। यस। वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस। क्या दिल्ली में मिलते हैं या? मैम दिल्ली में सबसे ज्यादा अच्छे मिलते हैं। अच्छा। अच्छा, अगर मिठाई की बात कहें तो आप कौन सी मिठाई खाना चाहेंगे? काजू कतली। वाह, वंडरफुल। राकिब सर, जब आप अकेले हैं, कोई आसपास भी नहीं है, कोई आपका मोबाइल भी चार्जिंग पे अभी है, आप वो भी नहीं टच कर सकते, अभी यूज नहीं कर सकते हैं, तो तब आपका ध्यान कहाँ पर रहे आपके मन में? यू कनेक्टेड टू योर माइंड। ध्यान कहाँ जाती है आपका? पुराने पास्ट में या प्रेजेंट या फ्यूचर में? मेरा ज्यादातर मैं फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता हूँ कि फ्यूचर का क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, आगे क्या मैं अचीव करने वाला हूँ, या फिर आगे की मेरी जिंदगी क्या होगी। उसका मतलब मैं ओवर थिंकर हूँ, ऐसा मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ। जी जी जी। आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है या खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगता है? मैं एक ही पर्सन से मिलता हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे और किसी से मिलना ज्यादा पसंद नहीं। जी जी। आपको वन में शांति मिलती है या समुंदर के किनारे पर चलना, वहां पर शांति मिलती है? माउंटेन्स। Pardon? माउंटेन्स। माउंटेन्स, वाओ, दैट्स रियली। बहुत सारे लोग, मैंने जब ये दो मैंने ऑप्शंस रखा ना, उन लोग थर्ड ऑप्शंस खुद ला लिए और कहा कि भाई माउंटेन्स के पास मुझे अच्छा लगता है, वहां पर चलना या माउंटेन्स को देखना। यस। क्योंकि माउंटेन्स एक अलग व्यू देते हैं। जी जी। आप आइसक्रीम्स भी खाते हैं? हम्म। आइसक्रीम्स? हाँ मैम इतना कोई शौक नहीं है, बट हाँ कभी कभी ओकेशनली। आपका सबसे फेवरेट ये जो मौसम? हाँ मैम विंटर। विंटर। अभी तो दिल्ली समर में बहुत गर्मी होगी ना? मैम बहुत बहुत ज्यादा। यस। मतलब आप नहीं निकल सकते, आफ्टरनून में तो नहीं निकल सकते, जी इतनी गर्मी होती है। जी मतलब अगर आप गए बाहर तो आप पसीने से होके ही लौटेंगे, मतलब आप पूरे ही पसीने में होंगे। जी जी सर। एक सुंदर सा दिन, एक प्यारा सा दिन, एक शब्द में बोलनी है, क्या बोलेंगे? मैम स्किप दिस क्वेश्चन। ओके। आपको गुस्सा आता है? हाँ मैम कभी कभी तो ऐसा किस इतना। बात पर गुस्सा, किस बात पर गुस्सा आता है? जब मैं अपनी चीजों को किसी सामने वाले के साथ ना एज अ कम्युनिकेशन पार्ट में रख रहा हूँ, बट वो समझना ही नहीं चाहता मेरी बात, तो फिर मुझे गुस्सा आने लगता है। मतलब अगर मैं 3-4 बार आपको एक ही बात समझा रहा हूँ बट फिर भी आप नहीं समझ रहे, देन फिर ह्यूमन नेचर। जी जी। आज तक आपको सबसे प्यारी वाली तोहफा, महत्व, इम्पोर्टेंट गिफ्ट दैट यू एवर रिसीव, प्रेशियस गिफ्ट? हाँ मैम गर्लफ्रेंड अपनी जिंदगी में, दैट्स उससे रियली ज्यादा नाइस। तो मुझे तो लगता नहीं कुछ है। वाओ, दैट्स रियली नाइस। Yes. We wish you all the very best in all your endeavors, my sir, my dear sir. आपके थैंक यू। हर एक जो आपका मन में अच्छी अच्छी बातें हैं, आपका ब्रांडिंग इंस्टीट्यूट को लेकर, या सभी आशाएं जो भी है आपके मन में, यस सभी अच्छी बातें, सभी, एवरीथिंग शुड बी फुलफिल्ड एंड यू शुड हैव अ वंडरफुल लाइफ। वी विश यू अ हैप्पी लाइफ। एंड अंत में हमको आपसे 3 गिफ्ट्स चाहिए। वो 3 शब्द ऐसा रहना है जो हमारे लिए यूजफुल होगा, जो हिम्मत दे सकते हैं हमको, हमारे दर्शकों को। ऐसी 3 अच्छी बातों के साथ ये सेशन खत्म करेंगे। मैम ऐसी 3 बातें यही रहेंगी कि आप अपना कभी गिव अप मत करना जिंदगी में। अप्स एंड डाउन सभी की जिंदगी में आते हैं, और कभी भी दूसरों से मतलब जलना मत, या उन सब चीजों जेलिसी फील मत करना, क्योंकि टाइम सबका आता है। ऐसा नहीं है कि अभी तुम्हारा और
आगे तुम्हारा नहीं होगा, तो जेलिसी मत करना, टाइम सबका आता है और सभी का आएगा। और तीसरी चीज, अपनी स्किल्स पे हमेशा फोकस करते रहना और इम्प्रोवाइज करते रहना अपना आप को, ताकि आप कभी भी इस मार्केट में आप पीछे ना रह सके। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपसे थैंक बात यू कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कुछ मैम, सीखने को भी सेम टू मिला। मी, सेम टू मी। यस, सीखने को भी मिला, क्योंकि आपके अंदर जो है एक विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं डाउन भी हो गया तो भी मैं फिर ऊपर आ सकता हूँ। मैं किसी दूसरे से पैसे नहीं लेके स्टार्ट करना चाहता, मेरे खुद के जो है, आई कैन टेक द रिस्क एंड गो अहेड विद इट। यू स्पोकन वेरी नाइसली। और आपने अपना जो बचपन का भी किस्सा जो समझाया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यस, एंड आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच राकिब सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। Thank you, sir. Thanks. Thank you very much. ओके My dear ओके। friends, yes. My dear friends, with this we come to an end to the International Fab Talks for now. We'll be connected with you very soon with yet another celebrity. But yes, if you'd like to connect with Rakib Chaudhary with regard to any services that he offers, he's connected with Brandling and Brandling Institute for startups and all of that. If you'd like to connect with him, do connect with him, friends. और एक छोटी सी बात, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, किसी और के साथ शेयर कीजिए। सही लोगों के साथ शेयर करने से क्या होता है, उनका फायदा होता है। शायद उन लोग सर से कांटेक्ट करना चाहेंगे, सर के सर्विसेज लेना चाहेंगे, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। और जो हम कर रहे हैं इंटरनेशनल फैब टॉक्स, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे लिए एक छोटी सी लाइक, छोटी सी सब्सक्राइब और छोटी सी शेयरिंग और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। Thank you, dear friends. We'll send the session now.